सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाँझपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। નમસ્કાર, આપણે બધા જાણીએ છીએ આપણો ભારત દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ આઝાદ થયો। આપણા દેશને અંગ્રેજોની 200 વર્ષની ગુલામીમાંથી આઝાદ કરવામાં સૌથી મહત્વનો ફાળો આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી તેમજ તેમના અન્ય સાથીદારોનો હતો, જેમણે આપણા દેશને આઝાદ કરવા માટે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરીને આ દેશ આપણા હવાલે કર્યો। ગાંધીજીને અંગ્રેજોના અત્યાચારોનો હંમેશા સામનો કરવો પડ્યો અને એમનો જ એક નાનકડો ભાગ આજે તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં ગાંધીજીએ દાંડી માર્ચનો આગ્રહ રાખીને મીઠાના આંકડાકરને તોડ્યા હતા। અરે બાપુ, આ ગરીબ માણસ કેવી રીતે જીવી શકશે? એક પછી એક મુશ્કેલીઓથી આ અંગ્રેજો આપણે ઘેરવા જ લાગ્યા છે। અને વળી આ નવી મુશ્કેલી મીઠાના કર્મધારીને આપણી સામે મૂકી દીધી છે। હવે તો અંગ્રેજ સરકારના વિરોધમાં તો કંઈક તો કરવું જ પડશે। હા, હવે તો બહુ થયું સહન કરવાનું। હા બાપુ, હવે તો કંઈક કરવું જ પડશે। આ કરનો ભંગ આપણે જુનૂનથી કરીશું। મીઠા ઉપર જે કર નાખવામાં આવ્યો છે તે તો પ્રજા માટે બહુ ભયંકર છે। હા બાપુ, સબરસ પર નોકર હરગીઝ નહીં ચલાવી લેવાય। તો ચાલો આજ નિર્ણય કરીએ ને મીઠાનો સવિનય ભંગ કરીએ। મીઠું તો કુદરતની દેન છે। તો આ રીતે જોશ અને જુનૂનની સાથે ગાંધીજી તેમજ બધા જ લોકો મીઠાના આંકડાકરને તોડવા માટે તેના સાથીદારો સાથે 12 માર્ચ 1930 ના રોજ સાબરમતી આશ્રમથી નીકળી પડે છે। હવે તો આ જાલિમોના મીઠાના આંકડાકરને તોડવા જ પડશે। સત્યના માર્ગ પર અસત્ય પર વિજય મેળવવાનો છે। જેની સહન શક્તિ અપાર હોય તે જ મારી સાથે આવે। અમે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ જ્યાં સુધી દેશને મીઠાના આંકડાકરમાંથી આઝાદી નહીં મળે ત્યાં સુધી ફરી આશ્રમ નહીં આવીએ। તો આ રીતે લોકો જોશ અને આત્મવિશ્વાસની સાથે સાબરમતી આશ્રમથી નીકળી પડે છે। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे
मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। આજથી હું અંગ્રેજોના પાયા પર લૂણો લગાડું છું। અંગ્રેજોને એમના દેશમાં જવું જ પડશે। हमें आजादी बिना कड़क बिना डर, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अरे बापू, તમે તો અમારા ભગવાન છો। મીઠા નાક રાખવાની જંજીરમાંથી છૂટવાનો આ પ્રથમ પગથિયું છે। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आदि बेटी रे, वैसे दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बनना जाए राज ओ बापू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। तो आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह गांधी जी ने कठोर परिश्रम करके हम सब लोगों को आज़ाद किया। 200 वर्षों की गुलामी और अत्याचार हम भारतवासियों ने सहा। हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेता और जनता के कठोर त्याग और बलिदान से हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। जाते जाते अंग्रेज भारत को 2 हिस्सों में बांटते हुए भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नाम से जाने लगा। भारत को आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को आधी रात में चुपके से आई और भारतवासियों में उत्साह की लहर छा गई। पहली बार उस दिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का झंडा फहराया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not only all in full measure, आजाद हो गया। but very तालियों से स्वागत करिए आजाद भारत का। at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, आजाद भारत India का will awake तालियों to से life and स्वागत freedom. कीजिए। ये आजादी बहुत सारे शहीदों के बलिदान के बाद मिली। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. अभी हमें आज़ादी मिल गई है और हमारा मूवी का ब्रेक हो गया है। I request our principal ma'am to continue with the report of Cham School. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure today to stand here before you on this wonderful evening and welcome you all on behalf of the whole Cham family. और आज ये इंटरव्यूशन में मुझे आप सबके समक्ष खड़े होने में ज़्यादा गर्व का महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी मैं एक आज़ाद हिंदुस्तान में खड़ी हूँ और आज़ाद हिंदुस्तान में खड़े होकर अपने देश के लिए
जय हिंद बोलते हुए मुझे बहुत गर्व का आनंद होता है और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ एक बार आप सब भी जय हिंद बोलकर फिर हम एक नई शुरुआत करें। जय हिंद, जय हिंद। और ये जो गूंज है ये हर दिल में बसनी चाहिए, ताकि जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए खोया, उन परिवारों ने जो हमारे लिए खोया, वो हम बरकरार रखें। उस आज़ादी को हम किसी और के हाथों बिकने ना दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज ये जो छोटे बच्चे आप सबके सामने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए, इससे बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये उन सारे शहीदों को सलाम है, उन सारे फौजियों को सलाम है जो देश में कई कठिन परिस्थितियों में खड़े होकर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। आज उन सबको एक सलामी देते हुए बहुत ही हर्ष और आनंद का महसूस होता है। और आपने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश को बहुत ही खराब हालत में मुश्किलों भरे जीवन को बिताने में मजबूर किया, और कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी जान लगाकर हमारी आज़ादी के लिए खड़े हुए। The journey of Chum School has always been a successful one with you parents and students who have always stood with us in all the odd times. The time period of 1998 to 2017, of 19 great years. It's not a small journey. To celebrate this annual day today, we are completing 19 years. So it's a great privilege that after 19 years, the school is still flourishing, and it will flourish day by day. And I'm very proud that we have such wonderful parents like you, such wonderful students who are always there to support all the teachers in everything that we have done. And a special thanks to the whole team of teachers, the staff, the non-teaching staff, every one of you. आप सब ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपना कीमती समय देकर इन बच्चों को यहाँ तक तराशा। और ये जो एक्टिंग करी है इन लोगों ने, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, उनके मन में भी जो देश प्रेम है वो भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ है। सो आई एम वेरी प्राउड दैट वी सिलेक्टेड दिस थीम एंड वी हैव मेड दिस जर्नी सो वंडरफुल। चम स्कूल is not a small name, it is a huge name. It is a mountain, a Himalay you can say, जहाँ पर हमने बच्चों को हर कंपटीशन, हर चीज़ में भाग लेकर आगे बढ़ना सिखाया, और हर एक स्टूडेंट ने बहुत ही जी जान से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़े हैं। आज हमारे स्कूल से पास आउट करके जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ MBA करके आज हमारे साथ हमारे ट्रस्टी के ग्रुप में हैं। इट्स अ रियल प्राउड फीलिंग। The students of Chum School have taken part in the rural IT quiz and they have represented Chum School in the state level. खेल महाकुंभ में 900 entries from Chum School were there and we were selected as a second prize winners on the state level. Then the inter-school competitions are always a fun for all the students and we enjoy collecting all the medals and trophies. It's a wonderful thing कि हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी जीत को लेकर आते हैं। और अभी रिसेंटली साइंस फेयर में भी हमारे स्कूल का जो साइंस प्रोजेक्ट मॉडल है, which was prepared by उपासना मैडम and helped by कार्तिक सर, it has been selected at the district level and will be representing very soon, I think by next month, at the science fair in state level at Surat. Chum School has always shown as a shining star. The well-trained teachers and the learning methodology. It's not only book knowledge, it is all practical. जो आज आपने स्टेज पर भी देख लिया कि हम सिर्फ किताबों में ही नहीं, उनको प्रैक्टिकल भी समझाते हैं कि जीवन क्या है और जीवन के मूल्य क्या है। हम किस तरह से सिर्फ किताबें पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उनके किताबों में लिखी हुई बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। आज इस मूवी के द्वारा हमें यह संदेश दिया कि आज़ादी एक दिन की बात नहीं थी। वो फ्रीडम फाइटर्स बहुत जोश
और बहुत ही उम्मीदों के साथ लड़े। उन्होंने अपनी जान इसी उम्मीद में दी होगी कि उनके बाद हम उस आज़ादी को कायम रखेंगे। And you'll be very much happy to know that whatever we perform on the stage here is not the one-time performance, but it is the first time in Porbandar. We started with the pot yoga. आपको याद होगा कुछ साल पहले हमने पहली बार पोरबंदर में, आज तक कभी किसी स्कूल में नहीं हुआ, केतन सर, महेश सर और जय सर की मेहनत से हमने योगा बच्चों को मटके के ऊपर पॉट के ऊपर बैलेंस करके योगा करना सिखाया और वो पहली बार चम स्कूल के बच्चों ने परफॉर्म किया। शैडो डांस जो एक बहुत ही मेट्रो सिटीज़ का परफॉर्मेंस है और हमें यही लगता था कि ये एक छोटे से शहर में कैसे हम कोरियोग्राफ कर सकें, पर हमारे बच्चों ने वो कमाल भी करके दिखाया और हमने फर्स्ट टाइम इन पोरबंदर शैडो डांस का कोरियोग्राफी भी की और हमारे बच्चों ने वो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। एंड टुडे यू विल बी वॉचिंग अ स्प्लेंडेड एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस which is the first time in Porbandar and is going to be performed by the students of Cham School. It's a UV act and I wish you all parents to be please seated till the end, क्योंकि अभी तो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अब हम आज़ाद देश में किस तरह से जिएंगे और किस तरह से खुशियाँ लाएंगे वो देखना बाकी है। इसलिए ये मूवी का इंटरवल है और आप सब इस मूवी में खूब एंजॉय करते हुए आगे का पार्ट भी देखिए। And I especially thank all the teachers and a special thanks to our script writer and director Rekha Tiwari madam, choreographer of today's performance Dolly Jungi and all the other teachers. आप सब ने बहुत ही मेहनत से बहुत ही कमाल की आज परफॉर्मेंस पेश की है। So a special thanks to Rekha madam and Dolly madam, क्योंकि आपके इस सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम का सक्सेस पॉसिबल नहीं था। एंड यस, व्हेन द टीम इज देयर एवरीवन इज अप्रिशिएटेड। वी आर अ स्टाफ ऑफ 70, सो आई कैन नॉट टेक ईच एंड एवरी नेम ओवर हियर, बट अ स्पेशल थैंक्स सभी को, अ स्पेशल थैंक्स टू द मासीज जो हमारी पियंस हैं, उन्होंने भी हमारे साथ उतनी ही मेहनत करके दिन रात बहुत एक साथ किया है। I would love to thank everyone over here when I'm standing here, and a special thanks to all the students, क्योंकि आप सब ने भी बहुत प्यार से बहुत समझते हुए इस थीम को आगे लेकर आए हैं। And a small, because it's an interval, I would all like you to please turn your eyes towards the projector slideshow over there, because हमने जो मूवी बनाई that was also under the direction of Rekha Tiwari madam. It was about the स्वच्छता अभियान, किस तरह से हम अपने स्कूल, अपने देश, अपने शहर को साफ रख सकते हैं, और इस मूवी में हमें सेकंड प्राइज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो मिला है। सो आई वुड लव टू मेक ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो गो थ्रू द जर्नी ऑफ दैट मूवी। प्लीज़, मूवी के अंदर एक छोटी सी मूवी आपको देखने को मिल रही है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ बी सीटेड सो दैट एवरीवन कैन वॉच, एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्लाइड शो मूवी। આપણો દેશ ગુલામીમાંથી નીકળીને આઝાદ થયો, પરંતુ ત્યારબાદ આપણા દેશને બહુ મોટું નુકસાન થયું। મહાત્મા ગાંધીજીની હત્યા કરવામાં આવી। તે નુકસાન, ગાંધીજીનું મોટાભાગનું જીવન સાબરમતીના આશ્રમમાં વીત્યું હતું। એવા સાબરમતીના સંત ગાંધીજીએ આપણે અહિંસાની શક્તિ વડે આઝાદી અપાવી। એવા અહિંસાના પૂજારીને આજે અમારા નાના ભૂલકાઓ શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે।